Hello everyone, I hope you all are well. So, in today's lecture, I am going to start with a new topic that is understanding quadrilaterals. This is part 1 of my video and chapter number 3 of your NCERT book. So, do you know beta what is a plane surface and a curved surface? Plane surface are those surface which is flat and plain. It has no turn at all. कोई भी टर्न ना हो, फ्लैट सरफेस हो, प्लेन सरफेस हो, that is known as a plane surface. For example, paper, matchbox, table, these all have plane surface. So a curved surface is the plane whose starting point is also the end point. आपके starting point and end point अगर same है, then that surface is known as your curved surface. For example, any kind of ball, volleyball, cricket ball, football, or an orange, mango, these all have a curved surface area, right? A simple closed curve is also known as Jordan curve. This is a Jordan curve, closed curve, right? Whose starting point is exactly the same as the end point. So these curves are classified into two categories. एक होते हैं बेटा closed curve and another are your open curve. Open curves कैसे होते हैं? Whose starting point can be different with the end point. This is your open curve, right? This is also an open curve. End point and the starting points are not meeting together. Okay, so another kind of curve is also known as a complex curve. This is a complex curve, complex closed curve, which has starting point and the end point same, and it contains too many curves. For example, this is also a complex curve, right? And this is a simple curve like a ball. So now let's study what are polygons. Polygons बेटा वो होते हैं एक simple closed curve which is made up of line segments. A simple closed curve made up of only line segments is known as your polygon. सिर्फ line segment से मिलके बनता है. Line segment, a line which has two end points, and further it cannot be extended. It is known as your line segment. आपको already पता होगा, right? So this is your line segment. It cannot be extended anymore. So ऐसा curve जो सिर्फ line segment से मिलके बना हो. अभी हमने पढ़ा था this was my curve, right? Do it contain any kind of line segment? No, it does not contain any line segments. For example, this triangle. Let us take an example of triangle. Triangle we can see this is my line segment 1, line segment 2, and this is my line segment 3, right? So this is also a simple closed curve. A simple closed curve जो सिर्फ line segment से मिलके बना है, it is known as a polygon. Polygon you already know, any closed figure, closed curve जो line segment से मिलके बनी हो. अब जरूरी नहीं है वो एक triangle ही हो. It has many more types. So let's study. Polygons बेटा curves that are polygons. ऐसे curves जो polygons हैं, देखो ये आपका एक polygon है, kind of rectangle, right? आपकी जो closed figure है वो मिलके बना है line segment से. So this is your polygon. Another polygon kind of square. So curves which are not polygons, ये आपके polygons नहीं हैं. Why? Because they are made up of line segments, but polygon has to be a closed figure. These figures are not closed. This is an open curve, right? We have already started. Open curve क्या होते हैं? Whose ending point and the starting points are different, but they are curves. वो curves जरूर हैं.
लेकिन पॉलीगन्स क्यों नहीं है? पॉलीगन्स हमेशा आपकी क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। समझ में आया? So, classification of polygons. First is your convex polygon. Convex polygon बेटा क्या होते हैं? ऐसे polygons whose internal angle is less than 180 degree, उनको कहते हैं convex polygon. आपके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, आप एक पॉलीगन बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव मेड अ ट्राइंगल एंड इस ट्राइंगल की फर्स्ट एंगल इज दिस, सेकेंड इंटीरियर एंगल इज दिस एंड थर्ड इंटीरियर एंगल इज दिस, राइट? सो इंटीरियर एंगल्स आपके ये होते हैं एंड एक्सटीरियर एंगल्स आपके बाहर के एंगल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट एट द आउटसाइड एरिया. सो इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज अगर 180 से कम है, 180 डिग्री से कम है, that polygon is known as a convex polygon. And the angles of any polygon is if it is greater than 180 degree. अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है then it is your concave polygon. The polygons are beta further divided into convex and concave polygon. Let's see the pictures. Now all the angles, interior angles of these polygons are less than 180 degree. हर एक एंगल जो होगा बेटा 180 से कम होगा. अगर 180 से कम है that means it is a convex polygon. नाम याद रखने के लिए क्या तरीका है बेटा? convex. आपका ये सारे जो points होते हैं, the end points of any line segments is known as your vertices. ये सारे आपके vertices हैं जिसको मैं circle कर रही हूँ, right? These are the end points. तो ये सारे आपके vertices हैं. These vertices, जितने भी ये vertices हैं आपके, ये सब आप देखोगे बेटा बाहर की तरफ point कर रहे हैं, right? ये बाहर की तरफ point कर रहे हैं. कोई ऐसे तो नहीं जा रहा ना अंदर की तरफ, सब बाहर की तरफ point कर रहे हैं. That means the angle, interior angle is less than 180 degree. 0 से 180 डिग्री के बीच में इनका एंगल लाई कर रहा है. ओके, सो दिस इज कन्वेक्स पॉलीगन. वहीं पे ही अगर हम कनकेव पॉलीगन देखें तो आपके सारे एंगल्स जो होते हैं, ये एंगल हो, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, इनमें से कोई भी एक एंगल आपका ज़रूर 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा. ओके, डिफरेंस होता है इन दोनों में एक एवरी का और एक एनी का. एनी ऑफ द एंगल इज greater than 180 degree and less than 360 degree, then we have concave polygon. And in convex, every angle, interior angle is less than 180 degree. Okay? तो आपके में देखो ये बेटा ये 180 से कम हो सकता है, ये 180 से कम हो सकता है, ये भी 180 से कम होगा, बट कोई ना कोई एक एंगल ऐसा ज़रूर होगा या दो एंगल ज़रूर होंगे ऐसे जो आपके ज़्यादा होंगे 180 से. मोस्टली आपका एक ही एंगल ऐसा होता है जो 180 से ज़्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल, अगर हम इसकी बात करें, पहले हम वर्टिसेस की बात करें तो ये भी आपका बाहर की तरफ पॉइंट हो रहा है, तो मतलब ये आपका 180 से कम है, राइट? ये भी बाहर की तरफ लाई कर रहा है तो ये भी 180 से कम है, ये भी बाहर की तरफ लाई कर रहा है, अगेन इट इज़ लेस देन 180 डिग्री. बट ये जो है आपका दिस वर्टेक्स, ये आपका अंदर की तरफ लाई हो रहा है. देखो अंदर की तरफ डायरेक्शन है इसकी, इनवर्ड डायरेक्शन, right? So this is a reflex angle which is greater than 180 degree and less than 360 degree. In this also देखो ये बाहर की तरफ है, means ये वाला angle is your, it lies between 0 to 180 degree. ये वाला again बाहर की तरफ है, again outside, outside, outside. but आपका ये देखो ये अंदर की तरफ है, vertex इसका अंदर की तरफ है, right? So this is greater than 180, less than 360 degree. So this is a reflex angle and it is a concave polygon. यहाँ पे इसमें भी हम देख सकते हैं ये वाला जो आपका है इनवर्ड डायरेक्शन में आपका ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ. So this is a concave polygon. समझ में आया? Now what are the parts of polygon? Polygon के कुछ parts होते हैं. For example vertices. पहला part होता है vertices. Vertices क्या होते हैं बेटा? अभी we have already seen this thing.
द एंड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, आपके जो साइड्स होती हैं, ये आपकी साइड्स होती हैं, इनके जो एंड पॉइंट्स होते हैं, दीज आर द एंड पॉइंट्स, ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं इनको कहते हैं वर्टिसेस। एक कोई भी कोई भी पॉइंट है उसको हम कहेंगे वर्टेक्स, और अगर एक से ज़्यादा है तो हम कहेंगे वर्टिसेस। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज कॉन्सिक्यूटिव साइड्स। कॉन्सिक्यूटिव साइड्स क्या होती है बेटा, एक ट्राइंगल है सपोज, तो इसकी कॉन्सिक्यूटिव साइड तो क्या होगी, ये एक साइड है, तो जो ये एक एंड पॉइंट है ये कॉमन होना चाहिए दूसरी साइड के साथ भी, वही दूसरी साइड भी वो टच करना चाहिए उस एंड पॉइंट के साथ। तो एक लाइन सेगमेंट तो ये है जो टच कर रही है इस एंड पॉइंट को, एंड दूसरी जो लाइन सेगमेंट है वो ये अनदर वन है विच इज टचिंग दिस एंड पॉइंट, राइट। ये एंड पॉइंट सपोज ये बी है, तो इस बी पॉइंट को ये लाइन सेगमेंट टच कर रही है एंड दिस लाइन सेगमेंट इज ऑल्सो टचिंग। सो any two sides which have same endpoint, which have a common endpoint is known as consecutive side. अब ये साइड जो है इसकी consecutive है, why? क्योंकि इसका जो common vertex होगा वो ये है, this side is consecutive to this side because इसका जो vertex common है वो ये वाला है, right? Now let's see. In this figure, this is polygon. Consecutive कौन सी sides हैं? AB is consecutive to BC. ये वाली consecutive है इसके, right? AB is consecutive to AD, right? क्या AB और CD consecutive है? No way. AB and CD it has no common point. कोई common point ही नहीं है. So they are not consecutive. इस फिगर में आपके 4 pairs of consecutive sides हैं, okay? Now another part of polygon is diagonal, which is very important. Diagonal of a polygon is any segment that joins two non-consecutive vertices. अब आपने vertices पढ़े थे, consecutive sides पढ़ी हैं. For example, this is your triangle, right? इसके vertices ये हैं, vertices are these end points. इसमें आपको ऐसी साइड्स दिख रही है जो नॉन कॉन्सिक्यूटिव हो? नो, अ ट्राइंगल हैज कॉन्सिक्यूटिव साइड। ये इसकी कॉन्सिक्यूटिव है, ये इसकी कॉन्सिक्यूटिव है, दिस इज कॉन्सिक्यूटिव विद दिस, मीन्स एवरी साइड इज कॉन्सिक्यूटिव। नॉन कॉन्सिक्यूटिव तो कोई भी साइड नहीं है, हर एक का कॉमन पॉइंट है एक, राइट? सो आपका ऐसा कॉन्सिक्यूटिव साइड जो वर्टिसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन दिस रेक्टेंगल ए बी सी एंड डी, कौन कौन से ऐसे वर्टेक्स हैं जो कॉन्सिक्यूटिव नहीं है? ये वाला वर्टेक्स कॉन्सिक्यूटिव इस वर्टेक्स के, ये वाला बी इज कॉन्सिक्यूटिव, बट सी जो वर्टेक्स है एक छोड़ के जो अगला होता है वो आपका कॉन्सिक्यूटिव नहीं होता। एक पॉइंट उसके अनदर पॉइंट जो एकदम से जो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज कॉन्सिक्यूटिव, बट जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट है वो कॉन्सिक्यूटिव नहीं होता, राइट? तो जो C है वो कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, राइट? तो C इज नॉट कॉन्सिक्यूटिव, सो A एंड C आर नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस। तो जब हम इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे, ये वर्टिसेस जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो वी हैव गॉट वन डायगोनल, a line segment that joins two non-consecutive vertices is known as your diagonal. Now for example B, एक B point है, तो क्या C उसका consecutive point है? Next vertex जो है वो आपका क्या consecutive है? No. D consecutive है, आपका D is not consecutive, it is non-consecutive vertex, उसका next to next है, right? तो जब हम B और D को ज्वाइन करेंगे, that line segment which joins two non-consecutive vertices is known as your diagonal. समझ में आया? Now, in this 5-sided polygon QRSTU, we have how many diagonals? देखो बेटा, S का जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट होगा नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स कौन सा है?
यू, एस का यू है एंड एस का क्यू भी है आपका, राइट। तो एस से जो यू की तरफ लाइन जा रही है एंड एस से जो क्यू की तरफ लाइन जा रही है, दीज बोथ आर डायगोनल्स। समझ में आया आपका? व्हाट आर डायगोनल्स? जो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, दैट इज नोन एज योर डायगोनल्स। अब इतना बड़े बड़े डायग्राम्स होते हैं, आप कैसे बताओगे कितने इसमें डायगोनल्स हैं अगर आपसे पूछ लिया? So I have brought a formula for you, that is n square minus 3n divided by 2. For example, if I need to find how many diagonals lies between a figure, then you have this formula where n is your number of sides. आपके इस फॉर्मूले में n जो है वो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेस्ट दिस whether it works or not. n square minus 3n डिवाइड बाई 2 में अगर n हम देखें फॉर एग्जाम्पल इन ट्राइंगल, तो हमारे ट्राइंगल में एक भी डायगोनल नहीं आ रहा था, आपने अगर देखा था, राइट। तो इसमें साइड्स कितनी है? 3 साइड्स है। तो लेट्स सी, 3 स्क्वायर माइनस 3n is 3 divided by 2, which is equal to 0 by 2, that is equal to 0, means we have 0 diagonal and that is true, correct. So आप ऐसे diagonals निकाल सकते हो, okay. So next we have classification of polygon. Classification of polygon में बेटा polygons are divided into further categories. एक पॉलीगन होते हैं इक्विलेटरल एंड अनदर वन इज इक्विएंगुलर। इक्विलेटरल वो होते हैं, लेटरल मीन्स साइड्स एंड एंगुलर मीन्स एंगल्स। इक्विलेटरल पॉलीगन्स वो होते हैं जिन पॉलीगन्स की साइड्स इक्वल हो, कॉन्ग्रुएंट हो। और इक्विएंगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? whose polygons angles are same. ऐसे polygons whose angles are same which are congruent, those are known as equiangular polygon. समझ में आया? So now a convex polygon, ऐसा convex polygon आपने already पढ़ा है, whose angles are less than 180 degree, interior angles. तो ऐसे polygons, ऐसे convex polygons जो equilateral भी हो और equiangular भी हो, उनको कहते हैं regular polygon. ऐसे आपके पॉलीगन जिनकी साइड्स भी इक्वल हो, एंगल्स भी इक्वल हो, उनको कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जांपल सारे 60 डिग्री होंगे, सारे 50 डिग्री होंगे या सारे 70 डिग्री होंगे, उन सबको हम रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। एंड इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं? इरेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिनकी साइड्स भी इक्वल नहीं होती या फिर एंगल भी इक्वल नहीं होता, दे आर नॉट रेगुलर, ओके। सो नाउ we have various polygons classified on the basis of their sides. For example, first one is triangle. Triangle is a three-sided polygon. Quadrilateral जो होता है वो होता है four-sided. Tri means three, quad means four, pent means five, pentagon. तो n gun अगर हम लगा देंगे, n dash gun, n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड गन हम लास्ट में सबके पीछे लिखेंगे। सो दिस इज हाउ टू नेम एनी पॉलीगन। ट्राइएंगल, इसमें हम ट्राइएंगल ये अलग बोलेंगे, 3 एंगल्स हो जिसमें 3 साइडेड, उसको हम कहेंगे ट्राइंगल। 4 साइडेड पॉलीगन को हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। पेंटागन 5 साइडेड, हेक्सागन, हेक्सा रिप्रेजेंट 6, तो 6 साइडेड पॉलीगन। सेप्टागन या फिर कह सकते हैं हेप्टागन, इट्स 7 साइडेड पॉलीगन। ऑक्टागन इज ऑक्टा, ऑक्टोपस आपने रिप्रेजेंट देखा होगा, वी कैन रिप्रेजेंट इट इज सिमिलर टू योर ऑक्टोपस, ऑक्टोपस हैज 8 legs, so octagon is an 8-sided polygon. Nonagon is a 9-sided polygon, decagon is 10-sided polygon, okay. तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, उसके आगे पीछे आप गन लगा दोगे, तो दैट इज हाउ टू नेम एनी पॉलीगन। नाउ वी हैव रेगुलर पॉलीगन्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड राइट नाउ। ऐसे पॉलीगन जो इक्विएंगुलर भी हो एंड इक्विलेटरल भी हो, राइट। लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स। ट्राइंगल 3-sided,
अब ज़रूरी नहीं है बेटा ये जो फिगर्स हैं आपके सामने दे रखी हैं इनके एंगल सेम ही हैं, ज़रूरी नहीं है ये चीज़। लेकिन सारे ज़रूरी तो नहीं सारे ट्राइंगल्स जो हैं वो आपके रेगुलर हो। नो, आइसोसेलेस इज नॉट अ रेगुलर। सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते, बट इक्विलेटरल के सारी साइड्स भी इक्वल होंगी एंड ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो हम ये मानेंगे दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। So 4 sides, 5 sides, 6 sides, these all are your regular polygons if the angles and sides are same. Now what is sum of interior angles of a polygon? अब अंदर के एंगल्स जो होते हैं आपके पॉलीगन के, मैंने आपके बताया था अगर वो रेगुलर हैं मीन्स सारी साइड्स रेगुलर भी नहीं बट अगर कन्वेक्स पॉलीगन है तो उनका जो सम है सारे एंगल्स का सम नहीं बट हम एंगल्स की बात करेंगे तो सारे एंगल्स 180 से कम और 0 से ज़्यादा होने चाहिए 0 डिग्री से, राइट। तो वो कुछ ना कुछ आपके सम बनाते हैं। टोटल सम कितना है, अब वो चाहे कनकेव पॉलीगन हो या कन्वेक्स पॉलीगन हो, सम का फॉर्मूला होता है बेटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला इज n-2 multiply 180 degree. In this way you can find out the sum of interior angles. For example, if your n is number of sides maximum एक polygon की कितनी हो सकती है, 3 तो है ही minimum, right? Maximum can be anything, but हम minimum से start करेंगे 3 से, that is a triangle, so 3 minus 2 is 1. उसका अंदर का एंगल सम प्रॉपर्टी है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फोर साइडेड दैट इज क्वाड्रिलेटरल। सो n is 4, 4 minus 2 is 2, 2 multiply 180 is 360 डिग्री। तो एक क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है, नहीं याद आ रहा तो दिस इज योर फॉर्मूला, राइट। नाउ लेट्स सी फाइव साइडेड, five-sided polygon is pentagon. 5 minus 2 is 3. 3 multiply 180 is 540. तो आपका जो पेंटागन का जो आपका अंदर का इंटीरियर सम एंगल सम प्रॉपर्टी होती है दैट इज इट हैज टू बी इक्वल टू 540। सारे एंगल्स को अगर आपको निकालने को बोल दिया गया है अगर आपको इन केस कोई भी 4 एंगल्स दे रखे हो आपको 5th एंगल निकालना है तो यू नो हाउ टू कैलकुलेट। सारे एंगल्स को सम कर दो, एक 5th एंगल को x ले लो and then you can find out the value of x by equating all the angles with 540. okay, मैं क्या कह रही हूँ आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एंगल 1। अभी फिलहाल अगर हम ट्राइंगल खींच लो 5 साइडेड ले लेते हैं, x1 x2 प्लस x3 प्लस x4। अगर हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो सारे एंगल्स का सम क्या होता है दैट इज 360 डिग्री, राइट। तो अगर हमें कोई भी 3 एंगल्स दे रखे हैं तो हम 4th वाला निकाल सकते हैं। नाउ इफ सपोज वी हैव पेंटागन तो इसमें 5 एंगल्स होंगे और हमें सम पता है विच इज इक्वल टू 540 डिग्री, ये हमें पता है, राइट। तो हमें सपोज करो 1 फर्स्ट एंगल दे रखा हो, सेकेंड एंगल दे रखा हो, 4th एंगल दे रखा हो, 5th एंगल दे रखा हो एंड वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स इज 540। तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x3, थर्ड एंगल की हम वैल्यू निकाल सकते हैं बाय हाउ, बाय कैलकुलेटिंग बाय एडिंग दीज टू एंड दीज टू अलॉन्ग विद दिस। हम इन दोनों का रिजल्ट आपस में ऐड कर देंगे एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 540 एंड देन वी विल गेट वैल्यू ऑफ x3। ओके, तो ये याद रखना बेटा जो भी पॉलीगन्स होते हैं उसका एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं ये आपके ये दिस इज योर पॉलीगन तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये है, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। इनका सम जो होता है ऑलवेज 360 डिग्री होता ही है। इट हैज़ नॉट टू बी कैलकुलेटेड बट इंटीरियर एंगल्स का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, वो 360 से कम भी हो सकता है, 360 से ज़्यादा भी हो सकता है। कम का मैंने आपको बताया कैसे, ट्राइंगल का 180 होता है, 360 क्वाड्रिलेटरल का होता है, मोर देन जो 360 डिग्रीज हैं पेंटागन हेप्टागन सबके मोर देन 360। तो बेटा क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स formed by joining 4 points।
चार वर्टेक्स से मिलके बनता है क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती हैं एंड हम नाम से ही पहचान सकते हैं क्वाड्रिलेटरल. Quad means 4, lateral means sides. Okay, so these all are the diagrams of your quadrilateral. अगर हमें इनको नेम करना है तो नेम कैसे करेंगे बेटा? A B C D सिक्वेंशियल वे में चलेंगे. हम ऐसे नहीं बोलेंगे A D C B. No, this is not the correct way. We will say A B C D. ना ही हम ऐसे बोलेंगे A C B D. A C B D means पहले हम इस पॉइंट को देख रहे हैं, then इस पॉइंट को and then ऐसे बोल रहे हैं. This is not a correct way. तो एक सीक्वेंशियल वे में चलेंगे, दैट इज मोर परफेक्ट. ओके, सो ए बी सी और डी पॉइंट्स, यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये जो पॉइंट्स हैं इनको कहते हैं वर्टिसेस. एंड डायगनल्स की बात करें तो ए सी इज अ डायगनल वेयर एज बी डी इज अ डायगनल. यहाँ पे जो भी कोई नॉन वर्टिसेस हैं उनको अगर कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है तो दैट इज अ डायगनल. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. Angle sum property. Angle sum property. The angle sum property of quadrilateral is 360 degree. And the angle sum property of triangle is 180 degree. We have divided a quadrilateral into two triangles. So 180 degree plus 180 degree is equal to 360 degree. देखिए तो quadrilateral two triangles. दो ट्राइंगल्स का सम मिलके बन रहा है एक पूरा क्वाड्रिलेटरल. राइट, एक कौन सा ट्राइंगल है? वन इज दिस वन एंड अनदर इज दिस ट्राइंगल. राइट, तो एक ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. अनदर का कितना हुआ? 180. 180 plus 180 is we got 360. If you have given that you have to prove how the angle sum property of any quadrilateral is 360, then you can say the sum of two triangles is the angle sum property of one triangle is 180 degree and another angle sum property is 180 degree again. So if we add both of them we get a quadrilateral which has angle sum property equal to 360 degree. समझ में आया? So now quadrilateral की चार साइड्स होती हैं. ये एक लैटिन वर्ड है quadri which means variant of 4 and lateral means side. So what are the properties of quadrilateral? Quadrilateral की property है बेटा that is it has 4 sides. चार sides होती हैं, 4 angles होते हैं, 4 vertices होती हैं and 1 pair of diagonals. So next we have interior angle sum property. Interior angle sum property हम already पढ़ चुके हैं. Interior angle का sum जो है वो 360 डिग्री होना चाहिए. It is not necessary कि सारे angles same हो, equal हो. No, angles can be different but sum has to be equal to 360 degree. Okay. Another one is exterior angle sum property which is according to this property the sum of exterior angles, सारे exterior angles का जो sum है वो 360 होना चाहिए. Okay, so let's see the figures. So in the next class we will be studying about the types of quadrilaterals. Till then, subscribe to my channel, do watch all my videos, share and like all my videos. Till then, stay safe, stay tuned. Bye bye.